માં 50 લાખનો ફ્લેટ પડતર કિંમતમાં આપવાની લાલચ આપી 9 લાખ રોકડા તથા 5.5 લાખના દાગીના મળી 14,50,000 લઈ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી। 2018માં બનેલા કેસમાં મહિલા આરોપી સહિત બેને એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે 4 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 2 લાખનો દંડનો હુકમ કર્યો હતો। ફરિયાદી જ્યોતિબેન દીપકભાઈ બથિયાએ જણાવ્યું હતું કે વાત 2018ની હતી। દીકરી હેતવી ધોરણ 12ની પરીક્ષાની તૈયારી માટે જે તે સમયે વીર નર્મદ લાઇબ્રેરીમાં વાંચવા માટે જતી હતી। ત્યાં તેની જાનકી પ્રમોદભાઈ ધોળકિયા સાથે દોસ્તી થઈ હતી। મિત્રતા થતા જાનકીબેન ઘરે આવતા જતા થઈ ગયા હતા। જાનકીએ કહ્યું કે તેમના પિતા પ્રમોદભાઈ ડાયમંડના ખૂબ જ મોટા વેપારી છે। બાંધકામમાં મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, વિદેશ પ્રવાસ કરે છે। મારો મિત્ર મયંક સોની પણ સોના ચાંદીના ઘરેણાની દુકાન ધરાવે છે। આવું કહી એકવાર ઉદયપુર ફ્લાઇટથી ફરવા લઈ ગયા હતા। ત્યારબાદ પિતા અને મિત્ર ધંધાકીય મોટા રોકાણો કરે છે। તેની સાથે ધંધાકીય રોકાણો કરવા લલચાવી ડુમસ વીઆર મોલ પાસે પિતાનો 50 લાખનો ફ્લેટ છે, જે પડતર કિંમતે રૂપિયા 35 લાખમાં આપી દેવાની વાતો કરી ટુકડે 9 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતા। જાનકીએ તેના મોટા મમ્મી ગુજરી ગયા છે, તેને પૈસાની ખૂબ જ જરૂર છે તેમ જણાવી તેમના પપ્પા વિદેશ ગયા છે અને અચાનક તેમની તબિયત બગડી ગઈ છે, તેથી તેને પૈસાની જરૂર છે। પૈસા નહીં થાય તો તેના પપ્પાનો જીવ જઈ શકે છે, જેથી પૈસાની ખૂબ જ જરૂર છે તેમ જણાવી પૈસા માંગતા ઘરેણા ઉપર મુથુટ ફાઇનાન્સના એકાઉન્ટમાં મૂકી લોન લેવડાવી હતી। પપ્પા આવી જાય ત્યારબાદ ઘરેણા લોન ચૂકવી છોડાવી આપીશ તેવા બોલ વચનો આપ્યા હતા। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મુથુટ ફાઇનાન્સમાં ઘરેણા મૂકી રૂપિયા 1.5 લાખ જેવી રકમ મેળવી તારીખ 30/8/2018ના રોજ તેમની દીકરી જાનકીના ઘરે જતા તેઓને ખબર પડી હતી કે તેના પિતા એક રત્ન કલાકાર છે, બિઝનેસ કરતા નથી। જાનકીના મોટા મમ્મી ગુજરી ગયા નથી, પિતા બીમાર થયા નથી। આ બાબતે ન્યાય માટે પોલીસ સ્ટેશનના દ્વાર ખખડાવતા તારીખ 31/8/2018ના રોજ પોલીસ સ્ટેશનમાં સમાધાન કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દાગીના 10 દિવસમાં છોડાવી આપવાનું તથા 2 મહિનામાં પૈસા ટુકડે આપવાનું જણાવી સમય માંગ્યો હતો અને 12,000 રોકડા આપ્યા હતા। ત્યારબાદ દીકરી હેતવી તથા ધર્મેશ તારીખ 5/10/2018ના રોજ જાનકીના ઘરે ગયા હતા, જ્યાં ગાળાગાળી કરી ધમકી આપી હતી કે હવે પછી પૈસા ઘરેણાની વાત કરશો તો વરાછાના ટપોરીઓને સોપારી આપી જાનથી મારી નાખીશું। સુરત ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં આ કેસ જતા જેમાં એપીપી બબીતાબેન બુઢાણી તથા એડવોકેટ રહીમ શેખની ધારદાર દલીલોને ગ્રાહ્ય રાખી નામદાર કોર્ટે આરોપીઓને સમાજમાં એક ઉત્તમ દાખલો બેસે તેમ સજા ફટકારી હતી। બંને આરોપીઓને 4 વર્ષની સખત કેદની સજા તથા રૂપિયા 2 લાખનો દંડ અને દંડ ન ભરે તો વધુ 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા તથા 3.5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો છે। मेरा नाम एडवोकेट रहीम शेख। एक्चुअली 2019 में एक ऐसी घटना बनी थी कि इस काम के जो 2 आरोपी हैं मयंक सोनी और जानकी ढोलकिया, इन्होंने मेरे जो क्लाइंट थे उनसे यहाँ पर 8वां लाइन्स में जो एक लाइब्रेरी आई है वहाँ पर ये पढ़ने जाते थे। वहाँ पर धीमे धीमे करके इन लोगों ने कॉन्टेक्ट डेवलप किए, मतलब कि दोस्ती करी और फिर धीमे धीमे ये जो हमारे कंप्लेनेंट हैं इनके यहाँ ये जाने लगे, फैमिली रिलेशन डेवलप किए और हमारे जो क्लाइंट है इनसे इन्होंने इस तरह का मतलब डेवलप किया कि मेरे जो फादर है, मतलब इसके जो आरोपी थे जो जिन्हें जेल हुई है, इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि मेरे जो फादर है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनका बहुत बड़ा बिल्डर का काम है और वीआर मॉल के पीछे बहुत सारे फ्लैट्स और प्रोजेक्ट्स आए हैं। इस तरह से इन्होंने हमारे जो असील है उन्हें ये कहा कि अगर आप गरीब हो, अगर आप जो फ्लैट की कीमत है उसकी हाफ पेमेंट भी करते हो तो मेरे फादर से कहकर मैं आपको वो फ्लैट 50% अमाउंट यानी कि 35 लाख में मैं आपको वो फ्लैट दिलवा दूंगी। और इसके बावजूद उन्होंने इन बिटवीन उस टाइम पीरियड में हमारे जो असील है उनकी बेटी और उनके बेटे को उदयपुर फ्लाइट में घुमाने लेकर गए और उससे ज़्यादा उनका ट्रस्ट डेवलप किया और ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने हमारे असील के सामने रिप्रेजेंट की कि भाई हम जो है वो काफ़ी लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक ये हो जाने के बाद ऐसे टुकड़े इन्होंने 9 लाख रुपए मतलब कि 9 लाख रुपए हमारे असील से चीटिंग कर ले लिए। उसके बाद इन्होंने अपनी मासी गुजर गई है ऐसा कहकर
हमारे पास आकर कहा कि मेरी मासू गुजर गई, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। उसके लिए भी इन्होंने कुछ जवेरात थे हमारे क्लाइंट के, वो लेकर गए। उसके बाद इन्होंने एक बार ऐसा रीज़न दिया कि मेरे फादर जो है वो अमेरिका में सीरियस पोजीशन में है, सीरियस हालत में है और मेरे पास अभी कैश अमाउंट नहीं है, तो आप कुछ भी करके मुझे पैसे दीजिए। उस वक्त मेरे जो क्लाइंट है उनके पास पैसों की अरेंजमेंट नहीं थी, तो इन्होंने अपने बाप दादाओं की जो ज्वेलरी थी वो इन्हें दी। तो ये जो इस काम के जो आरोपी हैं, इन्होंने वो ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में जाकर लोन से रखे और उसके पेटे भी 1.5 लाख जितनी अमाउंट इन्होंने वहाँ से ले ली। फिर ये हुआ कि कुछ दिन बाद जब हम कांटेक्ट करने लगे तो इनका कांटेक्ट नहीं होने लगा। तो जो मेरे असील है, जो मेरे क्लाइंट है, ये इनके घर गए तो तब जाकर पता चला कि ये जो लड़की है ये कोई लग्जरियस फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। इसके पापा कोई बिल्डर नहीं है और ना ही कोई बिजनेस टाइकून है। और पता चला कि इनकी जो आंटी मतलब मासी है वो भी जिंदा थी। इनके फादर को भी कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। और इनके जो फादर है कोई बिजनेसमैन नहीं, मगर हीरे की कंपनी में 10,000 की नौकरी करते हैं। ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद हमारे कंप्लेनेंट जो है, हमारे इस काम के जो कंप्लेनेंट हैं, इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। तो कंप्लेंट करी तो उसके काम उस वक्त ये लोग पुलिस स्टेशन में हाज़र हुए और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने इस तरह से ऑफेंस किया है। और उस काम में इनका सेटलमेंट हुआ। जो टोटल अमाउंट है वो 14,50,000 की है और मतलब टुकड़ा 9 लाख रुपए दिए तो बाकी 5,50,000 का गोल्ड, ऐसे मिलाकर 14,50,000 की अमाउंट है। उसमें इन्होंने 1,20,000 उस वक्त दिए थे और ये कमिटमेंट दी थी कि कुछ 15 दिनों के अंदर बाकी सारी रकम दे देंगे। इसके बाद वो वक्त बीत जाने के बाद भी हम इनके यहाँ गए तो इन्होंने ऐसा कोई जो पैसा है या गोल्ड है हमें रिटर्न नहीं किया। उल्टा इन्होंने हमारे जो क्लाइंट है इन्हें वराछा के टपोरियों से रेप करवाने की और मारने की, जान से मारने की धमकियाँ दी। तो जिसके चलते फिर हमने अड़ाजन पुलिस स्टेशन में इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और वो केस को चलकर 3 साल हुए। और कल ऑनरेबल कानाबार मैडम ने इन्हें 4 साल की पनिशमेंट, 2 लाख दंड और 3.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म किया है। बचाव पक्ष का सबसे मेजर दलीलें यही रही थी हमेशा से कि इसके जो 2 आरोपी हैं, एक मयंक सोनी और ये लड़की, ये बिफोर टाइम जब ये कंप्लेंट हुई थी तब ये एक दूसरे के साथ मतलब मित्रता के संबंध इनके थे। जब भी आते थे ये दोनों ही आते थे और इन्होंने हमारे पैसों से फॉरेन ट्रिप्स की, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ये घूमे। इन्होंने एशिया के आईफोन जैसे फ़ोन यूज़ किए और वो उनके पासपोर्ट में जो एंट्रियाँ हुई थी वो भी हमने नामदार कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखी है। इतना ही नहीं, ये जो आरोपी है, हमारे जो गोल्ड इन्होंने मुथूट फाइनेंस में रखा था उसकी CCTV फुटेज और इनकी जो साइन की हुई स्लिप है वो भी हमने नामदार कोर्ट के रिकॉर्ड पे रखा। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में जब इन्होंने ये जो हमारा पैसा था लेना, वो पैसों के लिए इन्होंने जो समाधान किया था उसका लेख भी, उसकी जो राइटिंग हुई थी उसके एविडेंस भी हमने नामदार कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखे। इतने ही नहीं, पर इस मैटर के जो पर्सनल नॉलेज रखते थे उन सारे विटनेसेस की जुबानी भी नामदार कोर्ट ने कंसीडर की। ऐसे कई सारे तमाम एविडेंसेस है जिनको कोर्ट ने मद्देनज़र रखते हुए इन्हें कल सज़ा फरमाई। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह की मतलब जजमेंट्स आते हैं और आजकल जिस तरह के मतलब बनाव बन रहे हैं देश में, तो ऐसी सज़ाएं होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को कानून, लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन का कोई डर रहा नहीं है। अगर आज ऐसी सज़ाएं, ये जो मार्केट में इस तरह से इकोनॉमिकल ऑफेंस हो रहे हैं और कई तरह के ऑफेंसेस हो रहे हैं, इन लोगों को जो कोर्ट से सज़ाएं हो रही है तो उससे जो कंप्लेनेंट है उनको न्याय पर भरोसा बना रहता है। और जो सज़ा, ये जो इस तरह का गुनाह करने वाले लोग हैं, इनमें एक डर बैठेगा कि ऐसा ऑफेंस करने से इस तरह की सज़ा भी हो सकती है और हमारे समाज में ये इस तरह के गुनाह बनने से अटकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत।